Okay, we are going to start the exercise of chapter number 11. Arrhenius equation was the last chapter according to the ALP. The topic of catalyst was excluded. So let's start. The first multiple choice is in zero order reaction, the rate is independent of G. Who is going to answer this? In zero order reaction, the rate is independent of what? No, G. Concentration of reactants? Yes, concentration of reactant. B is the right answer, the concentration of reactant. The zero order reaction doesn't depend on the concentrations of the reactants. The concentrations of the reactants are considered as a zero. Okay. Second is if the rate equation of a reaction 2A plus B form product, rate is equals to K, concentration with respect to A power 2 and concentration with respect to B, and A is present in large axis, then order of the reaction will be, if the concentration of A is in a large axis, then what will be the order of the reaction? One. See, it will be 1 because order of the reaction doesn't depend on that reactant which is present in axis. Clear? So the answer will be A, 1. Order of the reaction is 1. The rate of reaction increases as the reaction proceeds, decreases as the reaction proceeds, remains the same as the reaction proceeds, may decrease or increase as the reaction proceeds. So what will be the correct answer? Decreases as the B. reaction proceeds. No. Yes. ठीक है, decrease ही करेगा, decreases as the reaction proceeds. Okay. Because the amount of the reactant is decreases, and if the amount of the reactant is decreases, that means the effective collision, the number of effective collision is decreases. That's why decreases as the reaction proceeds. If there is a more concentration, then the rate of the reaction is more because there is more collision. Okay, next is with increase of 10 degrees Celsius temperature, with the increase of 10 degrees Celsius temperature, the rate of reaction doubles. This increase in rate of reaction is due to, see, what will be the correct answer? D. D, increase in number of effective collision. If you are increasing the temperature, then rate increases because collision is increased, the effective collision, the number of effective collision increase. The answer will be the D. Next, the unit of rate constant is the same as that of the rate of the reaction in which order the unit of the rate constant and rate of reaction is same. You know about the units of all the orders. So in which order of the reaction the rate constant and the rate of reaction having a same unit? Zero order? Yes, in a zero order reaction. Because it doesn't depend upon the concentration, so unit of the rate will be equals to rate constant. Because the concentration of the reactant is considered as a zero. So if it is taken as a power of zero, then it will be 1. Because we are not calculating rate with respect to the reactant. Fill in the blanks with suitable words. The rate of an endothermic reaction dash with the increase in temperature. See, what will be the answer? If you are increasing the temperature, what will happen if the reaction is endothermic? Hassan, Amina, Taha, what do you think? Increases. Increases. Because endothermic reactions need energy to proceed. So temperature, it will be the energy to proceed this reaction. So increases.
So you have to write here increases. Okay, next. All radioactive disintegration nuclear reactions are of dash order. I gave you the example when we were discussing about the half-life period. All radioactive disintegration nuclear reactions are of dash order. We have discussed the example of uranium. It will be first order. Revise that topic again. It will be first order because it doesn't depend upon the amount of the reactant. You are taking 1 gram, you are taking 2 gram, doesn't matter. The half-life period of the reaction of the reactant to convert into product will be same. Third, for a fast reaction, the rate constant is relatively dash and half-life is dash. What do you think? If the reaction is fast, then the rate constant is relatively. Gee, Amna, Hassan, Fajar, Manahil, Manal, Taha, what do you think? Rate constant greater हो जाएगा और half life small. Yes, rate constant will be greater and half-life will be short. So write here greater and half-life will be short. Okay, the second order reaction becomes dash if one of the reactant is in large excess. If you are taking one reactant as a large in the large quantity, then what will be the order of the reaction? First order. Yes, it will be first order. If you are taking the reactant as they are showing the second order, but if you take one of the reactant from between them in excess, then the reaction will becomes first order because the order of the reaction doesn't depend on the large excess, the reactant that is in a large excess. Okay, next is Arrhenius equation can be used to find out dash of a reaction. Activation energy. Yes, activation energy, yes. The Arrhenius equation is specially for the calculation of activation energy. So activation energy आपने यहाँ पूरा लिखना है, ठीक है? I'm just writing symbol, you have to write completely. So next is indicate true or false as the case may be. The half-life of a first order reaction increases with temperature. Answer this. It will be false. Half-life of first order reaction will not increase with the increase of temperature. Second, the reaction having zero activation energies are instantaneous. If there is zero activation energy for reaction, those reactions are instantaneous. That means those reactions are fast. Is it true or false? True. True, yes. Because activation energy is itself a barrier. Reactants first have to cross that barrier to make a product. Next is a catalyst makes a reaction more exothermic. Okay, this is excluded from ALP, but what do you think? If we are adding the catalyst in a reaction, that will be more exothermic? False. Yes. Do not do anything with the endothermic or exothermic term. Catalyst just increase the rate of the reaction.
Next, there is difference between rate law and the law of mass action. What do you think? There is a difference between rate law and law of mass action. These two laws are different or not? True, these two laws are different. The order of reaction is strictly determined by the stoichiometry of the balanced equation. False. Yes, definitely it's false because it do nothing with the balanced equation. We can calculate the order of the reaction by experiments. Okay. Question number 4 is included in your ALP. What is chemical kinetics? How do you compare chemical kinetics with chemical equilibrium? So you have to give the difference between them. This is a theoretical question. Next is the rate of a chemical reaction with respect to products is written with the positive sign. But with respect to reactant is written, you know how to write the rate of a chemical reaction, the equation for the rate of a chemical reaction. So you have to do this yourself. What are instantaneous and average rate? This is also a theoretical questions. Difference between rate of reaction, rate constant, homogeneous. This is not must be included in your syllabus because we haven't discussed the catalyst. Fast step and the rate determining step. You can differentiate between this. Enthalpy and the energy of activation. Next is the reasons. Justify the following statements. You have to answer this question. This will be your homework. We will discuss these reasons tomorrow. First, you have to try this. Okay? आप सबने ये खुद ट्राई करना है. उसके बाद हम इसे कल डिस्कस करेंगे. जो आपको रीजन समझ नहीं आएंगे, then we will discuss tomorrow. और इसमें आपके 7 में ये 2 included नहीं है. बाकी theoretical question है. So you can do this. 8 question is your homework. You have to do this. आपने से पढ़ना है, समझना है. जो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे इनमें से जो रीजंस वो हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें जो भी बातें की हैं वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स. तो आप जो भी रीजन पढ़ने बैठेंगे डेफिनेटली आप बुक खोल के अगर वो टॉपिक रिवाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस इट टुमारो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is included. Question number 9 is also included in your syllabus. Explain that. So अभी तक 1 से लेकर 9 तक सारे questions included हैं. ठीक है. 7 में बस part 2 नहीं included, homogeneous and heterogeneous catalyst वाला. Other than this आपके सारे questions 1 to 9 include है syllabus में. Explain that half-life method for measurement of the order of the reaction can help us to measure the order of even those reactions which have a fractional. ठीक है. तो आपका ये theoretical वाला question है कि आप फ्रैक्शनल ऑर्डर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. थ्योरी वाला क्वेश्चन है. सो ये आपने इस पे पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है. क्वेश्चन नंबर 10 एक्सक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 12 excluded. 13 is also excluded. 14 excluded. ठीक है. 10, 11, 12, 13, 14 are not included. Then 15 is included in your syllabus. मार्क करते रहिए आप सब. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. जी 14 नहीं इंक्लूड. उसके बाद आपका 15 इंक्लूड है. हाउ डज आर्हेनियस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन. आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन. ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है. आपने इसमें भी आपने पूरी वो डेरिवेशन बतानी है और उसको आपने एक्सप्लेन करना है. ग्राफ भी बना के बताना है और उसके साथ जो हमने डेरिवेशन की थी वो अपने वो भी बतानी है. ठीक है. 16 is not included. 17 is also not included because ये कैटलिस्ट से रिलेटेड है सारा टॉपिक तो नहीं इंक्लूड है.
17 भी नहीं इंक्लूड, कैटलिस्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। 18 भी नहीं इंक्लूड, एंजाइम के बारे में पूछा हुआ है, सो हमने ये भी नहीं डिस्कस किया, हमारी एलपी में नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रॉब्लम मैं आपको करवा चुकी हूँ जब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, तो ये हमने न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल नंबर 19। ये मैंने आपको समझा दिया था और होमवर्क में कहा था ट्राई कर लिया, फिर आप लोगों ने मुझे पिक्चर्स शेयर की थी। सो ये हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है ऐसे जिसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी। सो इसे देखते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन A plus B making product, give the following data। ये जो आपको डाटा गिवन है, this is at 25 day। Calculate the rate law। You have to calculate the rate law for this reaction। So how you can write the rate law? That K and the reactants with their powers। तो अभी हमें नहीं पता कि इनके ऊपर क्या पावर आएगी, because power doesn't depend on the बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ तो 1 1 मोल शो हो रहा है, तो हम यहाँ 1 और 1 इस इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते। वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये जो आपको गिवन है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है, ठीक है। तो इसको हम रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है और किसकी कितनी कंसंट्रेशन है, तो हमारा रेट लॉ जो हम लिख रहे हैं वो वेरीफाई हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पे योर अटेंशन हियर कि हम ये इस तरह का डाटा हो तो हम कैसे रीड करते हैं उसे। तो आप सबकी कंसंट्रेशन यहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, ठीक है। सो लुक एट द ए। हम अब पहले सबसे ए के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब आप ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो बी है उसकी कंसंट्रेशन सेम रहे। तो मैं ए के अकॉर्डिंग देख रही हूं यहां से यहां, ठीक है। 1 मोलर से ये हो गया 2 मोलर, और बी के मैंने ऐसे पॉइंट के साथ मैच करके चेक करना होता है, क्योंकि ये डाटा सिर्फ इतना नहीं होता, इट कुड बी द लॉन्गर डाटा। आपको बहुत छोटा सा डाटा दिए हुए, अक्सर ऐसे होता है कि बहुत लेंथी डाटास होते हैं, तो हमने इस तरह देखना होता है ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो बी की कंसंट्रेशन सेम रहे। सो लुक एट हियर, बी की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है, तो बी के अकॉर्डिंग हम रेट का चेंज नहीं देख रहे। इसका मतलब है जो रेट में चेंज आ रहा है वो ए के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ए रिएक्टेंट की चेंज हो रही है। सो कंसंट्रेशन फ्रॉम 1 मोलर बिकम्स 2 मोलर, डबल हो गई है। ए के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन डबल हो गई है। तो अब देखते हैं रेट पर क्या इफेक्ट हुआ है। सो लुक एट हियर, रेट जो है वो भी डबल हो गया है। तो अगर आपको सिखाया था, अगर कंसंट्रेशन डबल होने पर रेट डबल हो रहा है तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हसन, आमना, फजर, मनाहिल, मनाल, ताहा। अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है और रेट भी डबल हो रहा है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर जी, फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकंड होता तो ये 4 टाइम्स हो जाती, डबल करने पर 4 टाइम्स अगर रेट हो जाए तो दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर। क्लियर। अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर। तो अगर डबल होने पर डबल ही हो रहा है रेट, तो दैट मीन्स इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। जी मिस। सो ए के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल, यहां तक क्लियर है सबको। अब आइए बी पर, हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग देख लिया। अब आपने क्या करना है, सेम एज इट इज, जो बात मैंने आपको 1 के लिए सिखाई थी, अभी वही चीज आपने करनी है बी के लिए। वेट, ओके। बी के लिए भी सेम। अब आपने बी के वो 2 कंसंट्रेशंस लेनी है जिसमें चेंज आया है। अब ये फर्स्ट 2 तो सेम थी, तो अब ये थर्ड के साथ देखें आप चेंज आया है। तो
तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है रेट। लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि जब आपकी बी की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है तो इन सेम पॉइंट्स पर ए की कंसेंट्रेशन सेम हो। सो लुक एट हियर, ए की कंसेंट्रेशन सेम है, 1 थी, जब बी की चेंज हुई है तो ए की तब भी 1 ही है। तो अब इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं रेट बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए की कंसेंट्रेशन रेट को चेंज नहीं कर रही क्योंकि वो सेम रह रही है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेट का चेंज है ये अकॉर्डिंग टू बी है। सो सी 0.1 से ये चेंज हो गई है 0.2 तक, नॉट डबल, दैट मच डबल नहीं हुई है, लेकिन पॉइंट्स में उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आया है। सो 0.15 से ये 0.2 हो गई है। सो लुक एट द रेट, इट इज 4.2 से 5 हो गया, ये भी डबल नहीं हुआ, ये भी उतना ही चेंज हुआ है, 1 पॉइंट ही चेंज हुआ है जितनी बी की कंसंट्रेशन चेंज हुई है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी? Girls and Hassan, what will be the order with respect to B? What do you think? फर्स्ट ऑर्डर ये भी। फर्स्ट ऑर्डर, जितना आपका कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट चेंज हो रहा हो, अगर सेम ही हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू बी। सो फर्स्ट ऑर्डर है ए के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑर्डर है बी के अकॉर्डिंग, तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया? 1 + 1 इट विल बी 2. So the order of the reaction for this reaction is second order। और rate law आप लिखेंगे, rate law आपने calculate तो rate law करना है, तो rate law is equals to K concentration with respect to A 1 concentration with respect to B की power 1। तो ये आपका second order है और आपका rate law इस तरह लिखा जाएगा। किसी को कोई confusion ये problem समझने में? It's very easy जी बच्चों, समझ आ गया सबको? मिस, जो रेट, जो बी वाला रेट है उसमें तो सेकंड टाइम उसकी कंसंट्रेशन डबल नहीं हुई, तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगा? बेटा दिस इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा साइंटिस्ट ने कैसे लिया? पहले ली कंसंट्रेशन 1, फिर कंसंट्रेशन ली बी की 0.15 और उसका रेट नोट कर लिया। फिर सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो ए की कंसंट्रेशन साइंटिस्ट ने ले ली 2 मोलर और बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, साइंटिस्ट ने चेंज नहीं की, उसके बाद रेट कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब है ये जो रेट में चेंज आया है ये विद रिस्पेक्ट टू ए आया है, क्योंकि बी की तो कंसंट्रेशन में नहीं चेंज आया था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते हुए ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली और बी की कंसंट्रेशन जो कि 1.15 थी पहले एक्सपेरिमेंट में, अब उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी, 0.2 कर दी, फिर रेट चेक किया। अब ये जो रेट का चेंज है ये विद रिस्पेक्ट टू बी है, क्योंकि हम उन्होंने 1 की कंसंट्रेशन नहीं चेंज की। क्लियर नाउ? जी, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके अकॉर्डिंग रेट चेक किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके सिलेबस में इंक्लूड है, 22 भी इंक्लूड है। सो 21 प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी से, टाइम क्लास का ओवर होने वाला है, सो डू इट क्विकली। Okay, some reactions taking place around room temperature having activation energies around 50 kilojoule per mole। So आपको activation energy given है। What is the value of factor E power minus EA over RT? ये फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो पार्ट ए में आपने ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, आपने कोई पूरी इक्वेशन नहीं कैलकुलेट करनी, जस्ट सिर्फ ये जो आपको फैक्टर दिया गया है दिस फैक्टर, सिर्फ आपने ये फैक्टर की वैल्यू बतानी है कि क्या हो। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, E माइनस E, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है 50। क्लियर? R की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इस कांस्टेंट, वी नो दिस, क्या वैल्यू होती है R की? जी 8.314। ओके, आपने ये जो यहाँ पर किलो जूल में एक्टिवेशन एनर्जी, यू टेक इट इन अ जूल्स। ठीक है, हम किलो में नहीं लेते होते, दैट इज टेकिंग इन अ जूल्स। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलो जूल से अगर जूल में चेंज करना है तो
multiply with the 1000. Clear? Multiply करना है 1000 से, so it will be changed into joules. तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्टली ही लिख लीजिए बजाय इसके कि आप इसमें शो करें. सो आप लिख लीजिएगा e raised to the power minus 50,000. जब 1000 से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय r होता है 8.314 और आपका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री जी. तो 25 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या करेंगे सबसे पहले यस केल्विन में चेंज होगा. यस डेफिनेटली केल्विन में चेंज होगा. सो 25 प्लस 273 तो ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन. सो आपने यहाँ लिखना है 298. अब ये जबानी नहीं हो सकता. ये ई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सब अपने अगर कैलकुलेटर्स निकाल लेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ई कैसे कैलकुलेट होता है कैलकुलेटर में. दिस इज नॉट दैट एक्सपोनेंट. वो जो आप एक्सपोनेंट लेते थे दिस इज नॉट दैट एक्सपोनेंट. ये बेसिकली लॉग की बेस है. लॉग बेस ई होता है ये. दिस इज बेसिकली ln. आपने सब कैलकुलेटर्स निकाले और कैलकुलेटर निकालने के बाद शिफ्ट प्रेस कीजिए. शिफ्ट प्रेस करने के बाद ln प्रेस कीजिए. आप अपने कैलकुलेटर में देखेंगे लॉग के साथ ln लिखा हुआ है. दिस इज द लॉग बेस ई होता है दैट इज ln. सो शिफ्ट प्रेस ln तो आप देखेंगे आपकी कैलकुलेटर पे ई लिखा आ जाएगा. यू आर डूइंग दिस. आप सब ट्राई कर रहे हैं जी. कैलकुलेटर्स निकालें. हसन आप भी बेटा कैलकुलेटर निकालिए और उसे ट्राई करें. ई लिखने के बाद अब उसके ऊपर आप कैलकुलेशंस कीजिए अपने. ठीक है 50 को पहले तो आप 50,000 को डिवाइड कर लेना. ई पावर में बाद में वैल्यू पुट कर लीजिएगा. पहले आप 50,000 को डिवाइड कर लीजिए 8.314 मल्टीप्लाइड विद द 298 से. सो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 20.18. ठीक है. अब ये 20.18 आप ई की पावर देंगे. ठीक है. So shift E minus 20.18, your answer will be 1.72 10 raised to the power 9. ये आपका जो आंसर यहाँ लिखा है ना ये आ जाएगा. ठीक है. पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा फिर शिफ्ट प्रेस करके ln प्रेस करना है कैलकुलेटर में. देन उसके बाद माइनस के साथ अपनी वैल्यू लिखनी है डिवीजन वाली जो डिवीजन के बाद आई थी. उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. समझ आ गया सबको. हसन आमना हसन इट्स क्लियर. मनाहिल मिस वो ई की वैल्यू नहीं आई. शिफ्ट को उसके साथ किया लेकिन कॉस वो के नहीं साथ आया. नहीं करना. शिफ्ट के बाद ln दबाएं. मिस ln नहीं लिखा हुआ बेटा लिखा हुआ है लॉग के साथ. कैलकुलेटर में लॉग के साथ ln लिखा होता है और ln के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ई लिखा हुआ है छोटा वाला ई स्मॉल ई. और वो जो स्मॉल ई है उसके साथ बॉक्स बना हुआ है यानी कि अब स्मॉल ई की पावर लिखी जाएगी. देखिए ठीक है. कैलकुलेटर में अच्छी तरह देखिए in के साथ लिखा हुआ है in e और उसके that is ln. that's not I. ठीक है. ओके जी. सब अपने हसन बेटा आपने कर लिया है. हसन हम कर रहा हूँ जी. ट्राई करो बेटा. शिफ्ट ln प्रेस कीजिए. ताहा बेटे आपसे हो गया जी मिस. ओके वेरी गुड. सो शिफ्ट ln प्रेस करेंगे देन ई की पावर आ जाएगी तो फिर माइनस के साथ वैल्यू लिखिएगा तो आपका आंसर. भूलना नहीं है. इसे कहीं नोट कर लें. एग्जाम्स में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये ln कैसे कैलकुलेट हुआ है. ठीक है. तो नोट कर लें. शिफ्ट के बाद ln प्रेस करना है. ठीक है. नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं. लेट्स डिस्कस दैट. कैलकुलेट दिस फैक्टर एट 35 डिग्री सेल्सियस. तो अब आपने सेम यही फैक्टर पहले आपने 25 पे किया था. अब इसे 35 पे कर लें फिर इसे 45 पे कर लें. ठीक है. आपके डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे. एंड नोट द इंक्रीज इन दिस फैक्टर फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर. एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट आल्सो डबल्स. हम हर
डिग्री राइज पर, हर 10 डिग्री राइज करते हैं अगर टेम्परेचर, तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। सो आप ये 35 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 45 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहे हैं prove that for every 10 degree rise in temperature the factor doubles and so the rate constant also doubles. हमें पता है according to Arrhenius equation that rate is equals to A Arrhenius constant E minus EA over RT. So if you are increasing 10 degree temperature then rate will also be double. तो आपने अगर temperature in 10 degree rise कर दिया है तो your rate will also be double. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये हम अब कल डिस्कस करते हैं बिकॉज ये मीटिंग एंड होने वाली है और ये क्वेश्चन बीच में ही रह जाएगा। तो आप लोग 35 के लिए जब तक ट्राई करें और 45 के लिए जब तक ये मीटिंग एंड नहीं हो रही। I am here try to do with 35 degree Celsius and 45 degree Celsius.